क्वेश्चन नंबर 13 को कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं. Ethan's monthly salary is इतना in a particular he spent इतना percent on room rental, इतना on food and इतना on other expenses, but the amount that he overspent as a percentage of this monthly salary. Give you answer great to do this simple place. Okay, you did it like that. 20% of 10. Okay, good. So 378.25 आपके पास आ गया था. Actually this is a 379.25. Okay. Yeah, you got 378. Oh. 20.5% of this is equal to 379, not 378. Okay, and इतना डॉलर ऑन फूड. ओके, तो आपने ऐड करना है 690. ओके, गुड, यू डिड दैट. 690 प्लस 940 प्लस 378, तो इतना आ गया था. तो फिर आपने सब्ट्रैक्ट किए. Okay, you need to convert this amount as a percentage of his monthly salary. Okay, तो ये आपका 379.25 आ गया प्लस 940 प्लस 690 US डॉलर. तो इनको ऐड कर लो. You got that 2008.25. But let me check it. That is 2009.25. Okay, उनकी monthly salary कितनी थी? 1850. So you will need to subtract this. Good. Minus, क्योंकि ओवर स्पेंड का हमने परसेंटेज निकालना है. तो आपका आंसर आ गया था 158, बट दिस इज 159. ठीक है. So for percentage, what you will do, you will need to write this, because we need to find the percentage of overspend as a percentage of his monthly salary. So his monthly salary is 1850 US dollar times 100. Okay, we want to convert this into a percentage. So what you will do, you will need to multiply it by 100. तो अब ये कर लो, डिवाइड बाय 1850 times 100, you will get 8.6%. So our spend में कितना गया है? That is 8.6%. ओके, ठीक है. अच्छा, लेकिन आई डोंट गेट आपने परसेंटेज में कैसे किया है? ओके, परसेंटेज में मैंने किस तरह किए, जो भी आपने परसेंटेज फाइंड करना है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि ओवर स्पेंड का हमने एज अ परसेंटेज ऑफ हिज मंथली सैलरी. सो ओवर स्पेंड आपने ऊपर लिखना है. जिस चीज़ का भी आपने परसेंटेज फाइंड करना है वो आपने ऊपर लिखना है नोमिनेटर में. डिनोमिनेटर में आपने वो लिखना है लाइक दिस इज 8.6% overspent. So it means that if you find the 8.6% of his salary, which is 1850, that will be equal to 159.25. okay, उन्होंने आगे क्या लिखे? of his as a percentage of his monthly salary. So that's why I wrote this monthly salary over here. अच्छा, this is the fraction. So if you want to convert fraction into a percentage, you will always multiply it by 100. okay. Okay. Yeah, if you want to convert this percentage into a fraction, so you will divide it by 100. If you want to convert fraction into percentage, you will multiply it by 100. okay. Okay, ठीक है. Yes. Okay, next question, question number 14. Okay, question number 14 is there are 600 people in the novel. Ray Feng reads 150 pages of the novel on Friday and 40% of the remaining pages on Sunday. Express the number of pages, okay, that's remain to be read as a percentage of the total number of
पेजेस। तो परसेंटेज यहाँ पे आपने फाइंड करना है, तो ऊपर आपका नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे, नीचे आपका टोटल नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे। ओके, सो यू फाइंड इट दिस दैट ओके गुड 40% ऑफ 600 इज वो 240 आता है, सही है, गुड। The read 150 and 40% of the remaining pages on Sunday. Okay, तो टोटल पेजेस कितने हो गए, टोटल रीड पेजेस वो आपने सही किया, दैट्स 240 प्लस 150 दैट्स इक्वल टू 390। गुड। अच्छा अब 200 अच्छा अब उन्होंने क्या कहा है कि एक्सप्रेस द नंबर ऑफ पेजेस दैट रिमेन टू बी रीड। ओके, उन्होंने दैट्स रिमेन टू बी रीड। ओके, उन्होंने कितने रीड्स के लिए, इतने रीड्स के लिए, तो रिमेन टू बी रीड मींस कितने रहते हैं? या गुड। So that should be 600 minus 390. You did that and your answer is 210. Good. Okay, तो आप परसेंटेज फाइंड करने, तो what you will do? 210 over Yeah, 210 over वो नहीं पता। total number of pages in the novel. ऊपर तो आपको ये आ जाएगा, नीचे क्या आएगा वो भी आपने यहाँ से क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन लेना है। 600 या 600 गुड। और परसेंटेज में आपने कन्वर्ट करना है, सो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 100 या डिवाइड बाय 100। डिवाइड। गुड, डिवाइड बाय 100। हाँ, डिवाइड बाय 100। अगर आपने नॉर्मल कन्वर्ट करना है तो जो भी नंबर डिवाइडेड बाय 100 ही होगा। भूल गई आयशा, परसेंट, परसेंट मींस over 100। yeah, if you want to convert percentage into fraction, so you will do percent। okay, so you will do percent means ke divide by 100, but if you want to convert fraction into percentage, then what you will do, you will multiply it by 100, you will do the opposite of the first one। okay, so यहाँ पे I am going to convert fraction into percentage, so okay, you will divide this by 6, okay, and divide this by 6, so here you will get 100, okay, and here you will get 35, so that should be good to 35%। आप ये भी कर सकती हो, but if you want to convert fraction into percentage, then you will multiply it by 100। तो यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हो कि 210 divided by 600, I am going to convert this fraction into percentage, so I will multiply it by 100, so that will be equal to 35%। so I am going to convert fraction into percentage, then you will multiply it by 100, okay, but if you want to convert this percentage into a fraction, तो फिर आपने क्या करना है, डिवाइड बाय 100, बिकॉज दिस इज 35% की जगह आपने पर सेंट मीन्स 100 पर 100, सो यहाँ पे डिवाइड करना है। ओके, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन, बट इफ़ यू वांट टू डू ऑपोजिट, तो फिर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ओके ओके okay, next chapter that is related to percentage changes and reverse percentage। okay, इसमें हमने ये न्यू ये इंक्लूड है कि ये नहीं? न्यू कॉन्सेप्ट इंक्लूड है। ओके, आप क्या कह रही थी? ये एक इसमें न्यू कॉन्सेप्ट्स होंगे थिंक। यस, न्यू कंसेप्ट्स होंगे इसमें a little bit। okay, अच्छा, so percentage change it means के हमारे पास अगर इंक्रीज आ जाए या डिक्रीज आ जाए तो उन क्वेश्चन को हमने किस तरह सॉल्व करना है। ओके, अच्छा, यहाँ पे
लाइक अगर आपको इस तरह गिवन हो कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, ओके, परसेंटेज इंक्रीज मींस कि 3% इंक्रीज़ हुआ है या 4% इंक्रीज़ हुआ है, वो फाइंड कर लो, ओके। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह करना है, लाइक अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो कि द प्राइस ऑफ द बुक इंक्रीज फ्रॉम 350 to 400 rupees, ठीक है। okay, find the percentage increase. The price increased from 300 rupees to 100 rupees increase. Yeah, the price increased from 350 to 400 rupees, so we need to find the percentage increase, okay। तो increase, percentage increase आपने किस तरह find करना है? 350 नीचे आएगा, फिर divided by 35 top to bottom. अच्छा, यहाँ पे आपने इंक्रीज अमाउंट, ओके, नीचे आपका ओरिजिनल अमाउंट आएगा। ओरिजिनल मीन्स के पहले कितना था, 350 था, उसके बाद इंक्रीज हो गया, तो दिस इज द ओरिजिनल अमाउंट। इंक्रीज कितना आ गया, तो 400 माइनस 350, 50 रुपीज़ इंक्रीज आ गया। सो 50 डिवाइड बाय 350 टाइम्स 100 करना है। So this 0 will cancel out by this 0. This 5 times 1 is 5. 5 times 7 is 35. So 100 divided by 7. 100 divided by 7. उससे आ जाएगा 14.28%. So it means कि 14.28% इंक्रीज आ गया। Okay. ओके, तो अच्छा, इफ द क्वेश्चन इज लाइक द प्राइस डिक्रीज टू 300 रुपीज़, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। ओके, क्वेश्चन अगर इस तरह आ जाए तो फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल नीचे ओरिजिनल अमाउंट आएगा, ऊपर आपने डिक्रीज अमाउंट लिख देना। ओके, तो डिक्रीज कितना आया है, 350 माइनस 300, तो वो आपका 50 रुपीज़ डिक्रीज आया। नहीं, नीचे ओरिजिनल होगा फिर ऊपर न्यू वाला होगा। ऊपर न्यू वाला नहीं होगा, ऊपर आपका इंक्रीज कितना है, वो अमाउंट कितना इंक्रीज हुआ है वो आपने देखना है। ओके, यहाँ पे देख लो कितना डिक्रीज आ गया, 350 रुपीज़ पहले था, अब 300 रुपीज़ हो गया। ठीक है, सही। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ओके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। रीड दिस क्वेश्चन। 70% of books on a bookshelf are English. If there are 35 English books on exercise the bookshelf, find the number of the books on the bookshelf. Okay, so it means that we need to find the total number of books on the bookshelf. 70% of the book on the bookshelf are English books. So it means that 70%, can we write it like the 70% of unknown is equal to 35. Okay. Okay. Yeah, so Yes. this will be 70 divide, we need to find the unknown, that is the total number of books. So can I write it like this, 70%, so percent, cent means 100, instead of I will put multiplication sign and u, that's will equal to 35. So this will be 70 u divided by 100 is equal to 35. अच्छा, अब क्या करना है, how you will find the u value,
Times करेंगे 70u over 100. Sir, can't it be 7 over 10u? Good. फिर वो Yes. जो Yes. 7 over 10u equals to 35. फिर 7 over 10 other side पे जाएगा, नहीं सिर्फ 10 other side पे जाएगा और times होगा फिर 7 भी जाएगा और नहीं फिर 7 divide होगा. Good. Acha, can we write it like this? 7 times 1 is 7. 7 times 5 is 35. So it means the Seven. original amount of books is 50. Okay. Okay, easy है, same concept है. Okay, next question. Next question. Sir, this is the wrong thing. This is worked example. Yeah, these are the work examples, but we need to do these examples for good understanding. Okay. Okay. या उसके बाद एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपके सामने, यू विल बी एबल टू डू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज रेज्ड बाय 9% to $654, what is the original cost of the article? ओके, इट मीन्स कि हमने ओरिजिनल कॉस्ट फाइंड करना है. ओके, इंक्रीज कितना है? 9% इंक्रीज आया है. तो वो जो फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था कि परसेंटेज इंक्रीज is equal to Is equal यही था ना? या अभी फ्यू मिनट्स पहले हमने पढ़ा है कि इंक्रीज किस तरह, परसेंटेज इंक्रीज आपने किस तरह फाइंड करना है. अमाउंट इंक्रीज वो हम सब्ट्रैक्शन करते थे वहाँ पे, और ओरिजिनल अमाउंट टाइम्स 100. या डिक्रीज किस तरह फाइंड करें तो अमाउंट डिक्रीज ओरिजिनल अमाउंट टाइम्स 100. अच्छा, लेट्स से उन्होंने कहा कि इंक्रीज कितना हो गया अप टू $654. तो लेट्स से द ओरिजिनल अमाउंट इज़ अननोन, और अननोन अमाउंट से कितना इंक्रीज हुआ है, दैट इज़ $654. ओके, पहले इतना था, अब इंक्रीज हो गया इतना. सो परसेंट कितना इंक्रीज हुआ है? 9%. तो 9% आपके यहाँ पे आ जाएगा. अमाउंट इंक्रीज कितना हुआ है? 654 माइनस यू हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे हमने वो इंक्रीज अमाउंट लिखने, डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट दैट विल बी यू टाइम्स 100. सो ये सॉल्व कर लो. दिस विल बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं यहाँ पे. यस कर सकते हैं. तो 9u and 654 minus u times 100. So 66400 and then u 100. ये होगा. गुड. ओके, इस u को हमने उस साइड पे लेके जाना है. 100 यूज को एक साइड पे लेके जाना है और फिर 9u minus 100u तो फिर होगा गुड. सो दैट्स 91
-91 ही और फिर वो वाला जो साइड पे आ जाएगा. So that will be 600. Hmm. So it means that the original amount is 600. Okay, increase इतना है. Yeah. So this is the original cost. Okay, वही फार्मूला Okay. यूज़ किए हमने, बट हमने क्या किए हैं को ओरिजिनल अमाउंट की जगह यू पुट किए हैं. ओके अच्छा, Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Every year the value of an antique vase appreciates by 20% of its value in the previous year. If the value of the vase are $180,000 in 2012, find its value in 2010. ये भी इसी तरह है. ओके अच्छा, इसमें इंक्रीज कितना आया है? फॉर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इट इंक्रीज कैम दैट इज 20%. सो यहाँ पे 2 years इंक्रीज हमने पुट करना है. 10. अच्छा 2012 में इतना है. ओके तो 2011 में कितना हो जाएगा? यू विल नीड टू फाइंड द 80% ऑफ दिस अमाउंट. ओके 20% इंक्रीज हो रहा है ना, तो 80% रह जाएगा. तो इट मीन्स कि 80% ऑफ दिस अमाउंट विल बी लेफ्ट ओवर हेयर. उसमें 20% इंक्रीज आएगा तो वो आपको ये हो जाएगा. या आप इस तरह कर लो कि 20% इसका फाइंड कर लो तो वो इससे सब्ट्रैक्ट कर लो. 20% ऑफ दिस क्या हो जाएगा? इसका 20% फाइंड कर लेते हैं तो फिर वो हमने सब्ट्रैक्ट करना है. सो दैट्स विल बी 3 over 100. फिर zeros cancel out हो जाएंगे. फिर 180 over 2 times 180 होगा. अच्छा 36,000 आ जाएगा. ओके 20% ऑफ दिस अमाउंट इज 36,000. अब ये इससे सब्ट्रैक्ट कर लो. Sir, I don't think it's 26,000 because look. एक second में handwriting कर रही हूँ. किस तरह 260? वेट लेट मी चेक दैट. ओके अच्छा 2012 में इतना अमाउंट था. ओके 2011 में इतना अमाउंट हो गया. ओके सो 2010 में आपका इतना अमाउंट हो गया. ये 40% की तरफ आपने नहीं जाना. ओके लाइक 20% डिक्रीज करना है तो 20% ऑफ इतना अमाउंट कितना हो गया? 36,000 हो गया. तो ये फिर आपने माइनस करने इस अमाउंट से. सो यू विल गेट दिस अमाउंट. ओके इसी तरह फिर 20% आपने इसी का फाइंड करना है, इसी अमाउंट का फाइंड करना है. तो वो आपके पास 28,800 आ जाएगा. इसको फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना है 1,44,000 से आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है. सो यू विल गेट 1152.00 US डॉलर आ जाएगा. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. आप इसको इस तरह भी कर सकती हो कि फाइंड द 80% ऑफ 1800, क्योंकि इसमें 20% डिक्रीज़ आ रहा है तो टोटल 100% होते हैं, जिसमें 20% डिक्रीज़ आ जाता है तो कितना रह जाता है? 80% रह जाता है. सो 80% ऑफ दिस अमाउंट इज़ इक्वल टू दिस वन. तो आपके पास ये डायरेक्टली आ जाएगा. फिर 80% ऑफ दिस अमाउंट विल गिव यू दिस अमाउंट. ओके 80% आप इसका फिर ले लो तो वो आपको ये दे देगा. ओके 80% क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे पूछे कि 20% डिक्रीज आएगा. गॉट इट? Yes. This question, after a pay cut, the
after a pay cut of 3%, Devi monthly salary become इतना. Find her original monthly salary. Okay, तो इतना 3% डिडक्शन के बाद इतना सैलरी रह जाता है. सो कैन वी डू इट लाइक दिस के 97% ऑफ ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू कितना रह जाता है 3346.50 US$. ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गया कि नहीं? आ गया. यस, 3% डिडक्शन हो गया तो 97% ऑफ द ओरिजिनल सैलरी आप ले लो तो आपके पास इतना आ जाएगा. सो 97% टू डिवाइड बाय 100. ऑफ की जगह मैंने मल्टीप्लिकेशन साइन, ओरिजिनल सैलरी की जगह अननोन. ठीक है. सो योर अननोन विल बी इक्वल टू that will go 3450. Okay, so this is the original salary. Like if you find this amount 97% of 3450, so you will get 3346 $3,346.50 US$. आपके पास आ जाएगा. Okay, question number 2. Every year the value of the car appreciate. The value of a car depreciate by 15% of its value in the previous year. If the value of the car was $86,700 US in 2012, find its value in 2010. ओके, सो 2012 में कितना है? अच्छा, ओके, इट मीन्स के ईयर बाय ईयर ये अमाउंट डिक्रीज होता है. तो 2011 में कितना होगा, 2012 में कितना होगा, सॉरी 2010 में कितना होगा? अच्छा, 2010 में ज़्यादा होगा या कम होगा? 2010 में होगा. या 2011 में ज़्यादा होगा या कम होगा? ओरिजिनल कौन सा लेटेस्ट? ओरिजिनल 86,700. और नहीं, किस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं? ओरिजिनल हमारे पास अभी नहीं आया. ओरिजिनल मीन्स 2010 में क्या प्राइस था वो नहीं आया हमारे पास. ठीक है. फिर तो फिर 2012 में ज़्यादा वैल्यू थी कार की. यस, दिस इज द डिक्रीज अमाउंट, क्योंकि डिप्रेशिएट मीन्स कि उनका जो आपकी कार है उनका प्राइस कम हो रहा है टाइम बाय टाइम. ओके, वो आप देख भी लो डेली लाइफ में. आप आज कार बाय कर लो, न्यू कार, ओके, न्यू जेन्युइन कार आप बाय कर लो. सो आफ्टर 1 ईयर तो आपको वो प्राइस नहीं मिलेगा. कितना डिक्रीज़ आएगा प्राइस में? वो 15% डिक्रीज़ आएगा इन दिस क्वेश्चन. ओके, इन्होंने कहा कि मेरे पास जो 2012 में प्राइस की कार है दैट इज़ $86,700 US, और ईयर बाय ईयर इसमें कितना डिक्रीज़ आ रहे हैं? 15% डिक्रीज़ आ रहे हैं. ओके, सो इट मीन्स कि यहाँ पे जो अमाउंट है यहाँ पे उसमें 15% डिक्रीज़ आ गया तो आपके पास ये अमाउंट आ गया. ओके, इट मीन्स कि दिस इज द 85% ऑफ U1. ओके.
सो U1 आपका क्या आ जाएगा? वन 10 1 0 ये अमाउंट आ जाएगा। ओके ठीक है। यहाँ पे अमाउंट आ गया 102,000 US डॉलर। ओके लाइक इसमें 15% डिक्रीज फाइंड करो, सो यू विल गेट दिस अमाउंट। ओके अच्छा अब U2 ठीक है। क्या होगा? दैट्स विल बी 15% डिक्रीज, तो इट मीन्स 85%। हम्म, So this will be equal to 1 2 ओके ये आ जाएगा। सही है। यस। इट मीन्स के 2010 में उन्होंने न्यू कार बाई किया था, कितने का? 1,20,000 US डॉलर का बाई किया था। अच्छा 2011 में वो प्राइस डिक्रीज़ हो गया, कितना डिक्रीज़ हो गया? 15% डिक्रीज़ आ गया। सो प्राइस कितना रह गया? 1,02,000 प्राइस रह गया। ओके तो 2015 में कितना डिक्रीज़ हो गया? और डिक्रीज़ हो गया 15%, तो वो 86,700 US डॉलर रह गया। इट मीन्स के हमारे पास पहले कार का प्राइस कितना था? 115 रुपीज़ था लेट से। ओके तो यहाँ पे कितना 15% डिक्रीज आ गया, तो 100 हो गया। यहाँ पे फिर 85 हो गया। ओके यस। ओके तो 15% डिक्रीज आता गया और यहाँ तक पहुँच गया। तो आपने किस तरह फाइंड करना है? स्टेप बाय स्टेप आपने फाइंड करना है इस तरह। क्या? आयशा आपको ये 85% का समझ आ गया कि ये मैंने इसकी किस तरह दी है? हाँ। यस हाँ समझ अच्छा आ अगर गया। अगर यहाँ पे इंक्रीज आ जाए तो फिर आपने क्या लिखना है? आपने क्या लेना है? आपने 115% लेना है। ओके ओके। यस